नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में पहले चरण और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए आज थमेगा प्रचार। बंगाल में अमित शाह और ममता बनर्जी की जनसभाएं। तमिलनाडु में एमके स्टालिन ने जनता से मांगा समर्थन। कोलकाता पोर्ट घटना के संबंध में 3 एफआईआर दर्ज। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज की तीसरी एफआईआर। अब तक 9 लोग गिरफ्तार। पहलगाम आतंकी हमले की बरसी से पहले भारतीय सेना ने किया सोशल मीडिया पोस्ट। कहा, मानवता की सभी सीमाएं पार होने पर आती हैं निर्णायक प्रतिक्रिया। नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक पर देश भर में जनाक्रोश। महिला पदयात्रा। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा ने विपक्ष को घेरा। और केंद्र सरकार ने अतिरिक्त 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात को दी मंजूरी। उत्पादन, भंडार और कीमतों की समीक्षा के बाद लिया गया फैसला। और आपको सीधे लिए चलते हैं विज्ञान भवन, जहां पर उपराष्ट्रपति आज सिविल जो सेवा कर्मी हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। As I said, that Delhi can plan. You take the aspiration districts. That is one of the good innovative program by the Honorable Prime Minister, because you know all well that if we take underdeveloped states, then the other state is telling that we are contributing more, why we should not get more. That is not really correct. In the state also, not all the districts are contributing the same. In the states also, some districts are contributing more and some districts are contributing less. But it is the responsibility of the state to take the care for every district. Like that, the central government also have to take the care for every state. We cannot neglect any state. We cannot allow a state to be underdeveloped forever. So this aspiration district program, in my opinion, is one of the best. And we are finding out, even within a very well-developed states also, there are many districts which are very underdeveloped. So the care has been taken up. But how? That is all in the interest of the district collector who is implementing all these schemes. He has to plan according to the ground reality of that district. Like that, Modi ji has said, one product, one district. That cannot be implemented from Delhi. That has to be implemented at the district level. By whom? Again, the collector. So, this year holds special significance as it is the 150th birth anniversary of Sri Sardar Vallabhbhai Patel ji. He is the Iron Man, the unifier of our country, and the father of the All India services. Sardar Vallabhbhai Patel ji unified India politically, and as the architect of the civil services, he brought the nation together under a shared spirit of service and unity. This is the only service where you go, you migrate from your own home state to other state, and you live your whole life sometimes there. At least all of your service, many of the civil service, IAS, IPSs are serving that state only. This is where the integration of the country is getting strengthened
and you are the greatest ambassadors in that. The step of Sardar Patelji has enabled Bharat in its journey from colonial India to march towards a Viksit and Atmanirbhar Bharat. Bharat has achieved several milestones in the last decade. From nowhere, we become the fifth largest economy, and from fifth, we have moved towards the fourth largest economy, and I am sure soon we are going to be the third largest economy of the world. Prime Minister Shriman Narendra Modi ji's Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. This should not be a slogan alone. It should be felt by every citizen in its real sense. To name a few developments in this one decade, what we have achieved under the leadership of our Prime Minister Shriman Narendra Modi ji, nearly 25 crore people have come out of the poverty. This is not an easy task. Over 4 crore houses have been built for the poor. We do understand still we have to go a long way. But unless we are very proud of our achievement, we cannot progress further with a lot of enthusiasm. A man needs always an appreciation to keep his energy to work, to recharge his energy to work. The border villages of the country are being developed as vibrant villages today. तो आप ये सीधा प्रसारण देख रहे थे विज्ञान भवन से, जहां पर उपराष्ट्रपति आज सिविल सेवकों को संबोधित कर रहे थे। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने की जिम्मेदारी सिविल सेवा कर्मियों की है, और जिस तरह से सरकार ने ये प्रण लिया है कि देश को विकसित बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है और हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, सभी नागरिकों को सही मायनों में सबका साथ और सबका विकास, इसका मूल मंत्र समझ में आए, इसकी जिम्मेदारी हम सभी पर है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच हुई झड़प के मामले में कोलकाता पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है। इन 3 अलग अलग एफआईआर में से एक बीजेपी द्वारा, एक टीएमसी और एक पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज की है। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। कोलकाता पोर्ट क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई थी। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। और इस पूरे मामले पर तो आपको बताएं कि भाजपा और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प का मामला, जिस पर अब एफआईआर दर्ज हो गई है, गिरफ्तारियां भी की गई हैं और दोनों ही तरफ से गिरफ्तारियां हुई हैं। एक एफआईआर जो है बीजेपी ने दर्ज कराई है, दूसरी टीएमसी ने, और तीसरी एफआईआर शांति भंग करने के लिए पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज की है। तीनों एफआईआर में अब कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और पुलिस ने इस मामले में बल का भी प्रयोग किया था शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। साउथ कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत के मामले में पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है और कोलकाता से संवाददाता सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, ये पूरा मामला क्या था और अभी फिलहाल क्या स्थिति है? आपने बताया कि ये जो गिरफ्तारियां हैं वो हो चुकी हैं, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, अब इस मामले में आगे क्या? अजय जी देखिए, ये कोलकाता बंदर जो टीएमसी के मेयर फिराद हकीम के कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें राकेश सिंह इस बार बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है और इकबालपुर जो इलाका है वहां वो प्रचार कर रहे थे। तो बीजेपी का प्रचार चल रहा था, उसी वक्त टीएमसी के लोग वहां पे जमायत हुए और एकजुट होकर वहां पे जय बांग्ला स्लोगन देने लगे। तो वहां पर बीजेपी का कहना है कि पहला इंस्टिगेशन टीएमसी की तरफ से आया, तो उसी को चलते दोनों पार्टियों की जो कार्यकर्ता है उन्होंने उनके ऊपर झड़प हुआ, उनके साथ बातचीत में
झड़प शुरू हो गया। तो इस माहौल ऐसा हुआ कि पुलिस का कहना है कि एक वक्त के बाद पुलिस ने दोनों पक्ष के जो कार्यकर्ता थे उनको तितर किया गया है, लेकिन भाजपा का आरोप है कि बीजेपी के तरफ से कोई इंस्टिगेशन नहीं था, लेकिन फिर भी उनके जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर लाठीचार्ज किए गए और इसमें उनके जो बीजेपी के जो उम्मीदवार है राकेश सिंह, वो भी काफी हद तक घायल हुए हैं। राकेश सिंह है कि रैलीज करना, प्रचार करना हर पार्टी का हक होता है, और उसी समय क्यों टीएमसी के लोग वहां पे जमायत हुए, सेंट्रल फोर्स कहाँ था, क्यों सेंट्रल फोर्स को वहां पे देखा नहीं गया। पुलिस इन सारी बातों पे कार्रवाई कर रही है। 3 कंप्लेन लॉन्च हुई है, एक बीजेपी की तरफ से, एक तृणमूल की तरफ से, और एक पुलिस ने सुओ मोटो कंप्लेन लॉन्च किया गया है, और अब तक 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब इसके अलावा क्या और भी मामले सामने आए हैं इस तरह की झड़पों के, जिसमें कि चुनावी माहौल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में झड़पें हो रही हैं? पूरे राज्य में अभी फिलहाल क्या स्थिति है, उस पर कोई अपडेट है आपके पास? अजय जी देखिए, परसों बृहस्पति गुरुवार को पहली चरण की इलेक्शन है बंगाल में। 152 सीट में 16 जिला में चुनाव होगा। अगर आप देखेंगे कि पहले चरण के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे, वहां पे जैसे जैसे भाजपा उम्मीदवार अपने रैलीज करने लगे तो वहां पर भी कई जगहों पे झड़प होने की घटना सामने आई। और अभी दूसरे चरण में 29 अप्रैल को कोलकाता में इलेक्शन है, सेकेंड और दूसरी चरण में। और जैसे जैसे कोलकाता का जो कैंपेन है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ का भी माहौल गर्म हो रहा है। और साफ तरीके से कल जो हुआ, कल 2 इंसिडेंट को लेकर सवाल उठा। पहला तो ये कोलकाता बंदर वाला इंसिडेंट, और दूसरा है उत्तरी कलकत्ता में एंटली में, जहां पे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद मौजूद थी। सवाल ये उठ रहा है कि उस रैली में जो प्रियंका टिपरेवाल भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में जो रैली था, वहां पे अचानक से बत्ती गुल हो गया। तो ये सवाल उठ रहा है कि जब एक राज्य की सीएम ये दावा करती है कि उन्होंने अपने शासनकाल में राज्य से लोड शेडिंग यानी बिजली जाना गायब कर दिया, ये वो अपना एक बड़ा काम मानती है, तो यही सवाल उठता है। तो फिर एक दिल्ली के सीएम जो है, जो हाई प्रोफाइल लीडर है, वीआईपीज है, उनका जब वो रैली में मौजूद थे, तब कैसे एक इलाके का बत्ती गुल हो जाता है और बहुत समय तक ऐसे स्थिति बना रहता है। तो पुलिस वहां पे क्या कर रही थी, जो कैसे ऐसे हुआ, भाजपा का कहना है आखिर में ये जानबूझकर किया गया है। और भाजपा रेखा गुप्ता का ये कहना था, उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कोई घटना घटती है तो जिम्मेदार किसकी होती है, क्योंकि जो तस्वीर देखा गया है उसमें भी काफी सारे भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे। तो साफ तरीके से कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव आगे आ रहा है, टीएमसी के ऊपर दबाव बन रहा है, और इस दबाव के चलते वो सारे घटना घटती है जो घटना शायद ना हो इलेक्शन में, तो ही अच्छा है, गणतंत्र के लिए अच्छा है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। लेकिन इस मामले में बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती रही है कि जो स्थानीय पुलिस है वो टीएमसी के इशारे पर काम कर रही है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है, और क्या चुनाव आयोग की तरफ से इस मामले में कोई रिपोर्ट तलब की गई है राज्य प्रशासन से? इसके बाद कार्रवाई क्या कुछ की जा सकती है? सौरभ, देखिए, कोलकाता पोर्ट का जो इंसिडेंट है उसको लेकर अभी तक चुनाव आयोग ने कोई रिपोर्ट मांगा है ऐसा तो इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर भाजपा की तरफ से चुनाव आयोग बात को लेकर कोई कंप्लेन दर्ज होता है तो फिर आगे चल के देखना पड़ेगा कि चुनाव आयोग क्या कदम उठाती है। लेकिन 3 एफआईआर दर्ज हुए हैं। 3 एफआईआर दर्ज होने के बाद जाहिर सी बात है कि अगर चुनाव जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है और कहीं इलाके में ऐसे हिंसा की घटना घट रही है, तो वो घटना क्यों घटा, उसके पीछे क्या कारण था, तो पक्ष और विपक्ष पार्टियों का जो आरोप है उसका क्या बुनियाद है, इस बात में तो चुनाव आयोग जरूर काम करेगी। लेकिन अभी तक ऑफिशियली ऐसा कोई कम्युनिकेशन आया नहीं है कि कोलकाता पोर्ट को लेकर कोई रिपोर्ट सीपी से मांगा गया है, जैसे पिछले बार हमने देखा था कि जो घटना घटी थी उस केसेस में रिपोर्ट मांगा था चुनाव आयोग ने। सर, अब चलते चलते जो ये एफआईआर दर्ज की गई है, एफआईआर में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, उनकी तरफ से क्या कोई बयान दर्ज किया गया है? अभी कोई फौरी तौर पर आपको जानकारी मिल पा रही है इस मामले में? देखिए, एफआईआर जो दर्ज किए गए हैं, भाजपा का जो एफआईआर है वो साफ तरीके से यही है कि टीएमसी की तरफ से इंस्टिगेशन था। टीएमसी का जो आरोप है वो भाजपा को कहना है कि भाजपा की तरफ इंस्टिगेशन था। पुलिस का कहना है तोड़फोड़ हुआ, पुलिस अधिकारियों का गाड़ी तोड़फोड़ हुआ।
एक इकबालपुर के जो ओसी है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, काफी सारे पुलिसकर्मी जख्म हुए हैं, पुलिस के बॉडी कैमरा छीन लिए गए हैं। तो ये पुलिस का ऑब्जर्वेशन है। अब तीनों पक्ष को जांच करके ही पता चलेगा कि किसके बातों में कितनी सच्चाई है, आखिर क्या हुआ था। और इसमें पुलिस की भूमिका को लेकर जो आलोचना हो रही है कि पुलिस ने एक पक्ष का साथ पक्ष दिया जी। काम किया है, वो भी आगे चलकर पता चलेगा कि जांच होने के बाद क्या होगा। सरोज दत्ता, बहुत धन्यवाद। आप मामले पर निगाह बनाए रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए और अपडेट देने के लिए। बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी दूसरी खबरों की, हमारे स्पेशल सेगमेंट जनादेश में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज शाम प्रचार थम जाएगा। बंगाल में पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को 16 सीटों की 152 सीटों पर मतदान होगा। इनमें उत्तर बंगाल के 8, दक्षिण बंगाल के 3 और जंगल महल अंचल के 5 जिले शामिल हैं। मुर्शिदाबाद की 22, कूच बिहार की 9, जलपाईगुड़ी की 7, अलीपुरद्वार की 5, कालिम्पोंग की 1, दार्जिलिंग की 5, उत्तर दिनाजपुर की 9, दक्षिण दिनाजपुर की 6, मालदा की 12, बीरभूम की 11, पश्चिम बर्धमान की 9, पूर्व मेदिनीपुर की 16, पश्चिमी मेदिनीपुर की 15, झाड़ग्राम की 4, पुरुलिया की 9 और बांकुड़ा की 12 सीटें शामिल हैं। पहले चरण में कुल 1478 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदाताओं की कुल संख्या 3,60,77,171 है। पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। कल वे शाम सिलीगुड़ी पहुंचे। आज वे बंगाल में 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके लिए वो सिलीगुड़ी, पश्चिम बर्धमान, पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री आज सबसे पहले सिलीगुड़ी के कुर्सियांग में एक जनसभा में शामिल होंगे, जहां वे कुर्सियांग और दार्जिलिंग विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो जाएंगे पश्चिम बर्धमान, वहां के बाल्टोरिया इलाके में कुल्टी विधानसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह अपनी तीसरी जनसभा में आज सालबोनी विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से मुखातिब होंगे। इसके बाद चांदीपुर में आयोजित जनसभा में वो वहां के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। और खड़गपुर सदर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और राज्य की जनता अब बदलाव के मूड में है। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी सरकार का जाना तय है और पश्चिम बंगाल में भाजपा प्रचंड जीत दर्ज करेगी। टीएमसी का अंतिम घंटा बज चुकी है, जाने का समय आ गया है। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होता। ममता बनर्जी के हाथ में कुछ भी नहीं है। पार्टी चला गया एंटी सोशल्स के हाथ में। एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे लोग सब कर रहे हैं कि जो करप्टेड लोग हैं, तो इसलिए इनको विदाई निश्चित है। जनता उसी तरफ देख रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया, उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर और जगद्दल और कोलकाता के जोरासांको में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अन्य दलों के नेताओं के भी आज कई जनसभाओं में शामिल होने की उम्मीद है। और पश्चिम बंगाल के पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा। चुनाव को लेकर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भरोसा जताया है कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से भयमुक्त, हिंसा मुक्त और दबाव मुक्त होगी। साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या स्वायत्त संस्थाओं के किसी भी कर्मचारियों को चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने नहीं दिया जाएगा। राज्य में पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। उधर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने टीएमसी सरकार पर रोड शो के दौरान इलाके की स्ट्रीट लाइट्स बंद करके हजारों लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया। सोमवार शाम को रेखा गुप्ता का कोलकाता में रोड शो था। उनका आरोप है कि इस दौरान पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने जानबूझकर के एक इलाके की स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी ताकि उनके चुनाव प्रचार में बाधा डाली जा सके और भाजपा उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए जमा हुए हजारों लोगों की जान उन्होंने खतरे में डाली। अंधेरे के बीच विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं और सुरक्षा में अगर कोई चूक होती है तो इसकी जिम्मेदारी ममता दीदी पर होगी। साथ ही इस दौरान
दिल्ली की मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मामले में टीएमसी के रिकॉर्ड पर भी निशाना साधा। प्रचार करने के लिए, रोकने के लिए जिस तरीके से सारी स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई है और इन संकरी गलियों में आज यदि कोई दुर्घटना यहाँ पे हो जाती है तो मैं आप सभी मीडिया के साथियों को ये कहना चाहती हूँ कि ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी टीएमसी सरकार की है, उनके गुंडों की है, प्रशासन की है कि आज इस पूरी की पूरी बड़ी यात्रा जिसमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं और पूरे मोहल्ले में हर स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई है। एक मुख्यमंत्री दूसरे प्रांत के यहाँ पर है, अगर यहाँ पे सुरक्षा में कोई चूक होती है तो इसकी जिम्मेदारी ममता दीदी आपको स्वयं लेनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव अपने पूरे रंग में है। हर पार्टी जनता तक पहुंच बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन जनता के मन में क्या है ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने झाड़ग्राम में जाकर के लोगों से बात की और चुनाव को लेकर के यहाँ के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं उससे पहले आपको लिए चलेंगे सिलीगुड़ी, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त लोगों के साथ मुखातिब। राम राम, नमस्कार भाइयों बहनों। मैं दार्जिलिंग में आना चाहता था मगर दार्जिलिंग में आ नहीं पाया। हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं थी, उस वक्त हवामान ठीक नहीं था। तब मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर कहा था मैं 21 तारीख को जरूर आऊंगा और आप सबके मिलकर ही मैं दिल्ली वापस जाऊंगा। और आज मैं आप सबको मिलने के लिए आया हूं। बाकी सारी बातें तो मैं बाद में करूंगा, मगर पूरे बंगाल में घूमता 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 आज अंतिम दिन पहाड़ पर आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हम पर जुर्म ढाने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। और मैं आज ढेर सारी उत्तर बंग, दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी के लिए बात करूंगा, मगर सबसे पहले एक बात करने आया हूं कि बंगाल की सरकार भाजपा की बनते ही 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे। कांग्रेस, टीएमसी, ये सब ने दार्जिलिंग के साथ भी अन्याय किया है और मेरे देशभक्त गोरखा भाइयों के साथ भी अन्याय किया है। मैं 9 साल से यहां आता हूं। मैं आज आपको वादा कर कर जाता हूं, कमल फूल की सरकार बनते ही 6 माह के अंदर 10 को जूनी, 10 को पुरानी गोरखा समस्या का गोरखाओं के हिसाब से समाधान कर कर जाएंगे। और भाइयों बहनों, हम आपको भी समझते हैं और आपकी समस्या को भी समझते हैं, और इसलिए भाजपा के अलावे गोरखा समस्या का समाधान कोई कर नहीं सकता। भाइयों बहनों, चुनाव पूरे बंगाल को टीएमसी के जुर्म से मुक्त करने का चुनाव, और एक प्रकार से उत्तर बंग और दार्जिलिंग को बरसों से हो रहे अन्याय से मुक्ति पाने का चुनाव। आप एक बार
भाजपा सरकार बना दीजिए उत्तर बंग वालों। 3 चुनाव से दार्जिलिंग तो कमल के फूल पर वोट कर ही रहा है, मगर बाकी के बंगाल से इतना समर्थन नहीं मिलता था। इस बार पूरा बंगाल तय कर बैठा है कि दीदी को निकालने का टाइम आ गया है, आ गया। दार्जिलिंग और उत्तर बंग को जो अन्याय हो रहा है, वो अन्याय का सारा समाधान भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये चुनाव जो है, ये हमारे 2 एमएलए को प्रत्याशी को एमएलए बनाने का नहीं है। ये चुनाव दार्जिलिंग की पहाड़ियों से लेकर गंगा सागर तक और गंगा सागर से लेकर बंगाल के कैपिटल कोलकाता तक हमारी माताओं बहनों को सुरक्षित करने का चुनाव। भाइयों बहनों, ममता के राज में ढेर सारी माताओं बहनों पर अत्याचार हुआ। संदेश खाली की घटनाओं ने पूरे बंगाल को शर्मसार किया है और मैं आज बताना चाहता हूं कि माटीगढ़ा की वो निर्दोष बालिका हो, बागडोगरा के पास चाय बागान में आदिवासी महिला के साथ उत्पीड़न हुआ हो, दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज का बलात्कार, साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज का बलात्कार, आरजी कार मेडिकल कॉलेज का बलात्कार, हर बलात्कारी को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी। आप देख रहे थे सिलीगुड़ी से गृहमंत्री अमित शाह की ये जनसभा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर ममता राज में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार का जिक्र किया और उन्होंने ये भी वायदा किया कि अगर बीजेपी सरकार आई तो 6 महीनों के भीतर गोरखाओं की समस्याओं का भी समाधान कर दिया जाएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी चुनाव से जुड़ी खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए समाचार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पश्चिम बंगाल में चुनाव अपने पूरे रंग में है। हर पार्टी जनता तक पहुंच बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन जनता के मन में क्या है, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने झाड़ग्राम के लोगों के साथ बातचीत के दौरान। चुनाव को लेकर के यहाँ के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। झाड़ग्राम के रविंद्र पार्क में हम पहुंचे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह के इश्यूज़ हैं, किस तरह के इनके मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं चुनावों को लेकर, किस तरह की सरकार सोच रहे हैं। यहाँ पूरे झाड़ग्राम की अगर बात करें, आपको क्या लग रहा है, कौन कौन सी परेशानियाँ हैं? इधर तो बहुत कुछ का परेशानी है। इधर देखिए रास्ता घाट, बस का भाता भी नहीं मिला है, लक्खी भंडार देख के वो चमका के रखा है। यहाँ पे कुछ काम ऐसा कुछ काम होता नहीं है। यहाँ का मैक्सिमम आदमी झारखंड चला जाता है। रोजगार यहाँ पे कुछ है ही नहीं है। बिजनेस करने जाइएगा अभी तो आपको यहाँ पे सबको हफ्ता देना पड़ता है। टीएमसी दादा लोगों को कुछ भी आप एक तो छोटा भी काम करने जाइए, आप घर भी बनाने जाइएगा अपना पैसा से भी उन लोगों को हफ्ता देना पड़ता है यहाँ पे। कि ये जो गवर्नमेंट चल रही है पूरी डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट है। ये जितना हम लोग का सेंट्रल का जितना योजना है यहाँ चलने नहीं देती है। टोटली फेल गवर्नमेंट है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पे परिवर्तन चाहिए। बांग्लादेश से जितना अनुप्रवेशकारी लोग आते हैं उनको यहाँ पे रहने के लिए लोग पनाह देते हैं। उनका फर्जी वोटर कार्ड, आई कार्ड बना देते हैं। एक्चुअल जो यहाँ का रहने वाले हैं वो लोग अपने हिस्सा से वंचित होते हैं। ममता बनर्जी जनजाति आदिवासी लोगों के लिए कुछ नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे जो आदिवासी लोगों के जो एजुकेशन स्कूल है, विश्वविद्यालय, कॉलेज है, उसको पूरी बंद करके रखा हुआ है। ना कोई टीचर है, कुछ नहीं है। वो पूरा सिस्टम बिगड़े हुए है।
और करप्शन में पूरा बंगाल भर गया है। ये चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो इनकी बेहतरी के लिए काम करे, झाड़गांव के विकास के लिए काम करे। मुझे और मेरे कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा को दीजिए इजाज़त। फिर पश्चिम बंगाल के किसी और ज़िले से लोगों का हाल और उनकी आवाज़ हम आपको सुनवाएंगे। आप देख रहे थे झारग्राम से ये स्पेशल रिपोर्ट। और पश्चिम बंगाल देश का ऐसा राज्य है जहां पर बर्फीली वादियों से लेकर के बंगाल के उपजाऊ मैदान और समुद्र के तटीय इलाके भी शामिल हैं। यहाँ की सियासत में पहाड़ और मैदान के मुद्दे अलग अलग हैं। पहाड़ी मुद्दे क्या हैं, जायजा लिया संवाददाता ऋषि कुमार ने कार्शियांग इलाके के एक छोटे से गाँव में। कि ये पहाड़ी इलाका है, चूँकि यहाँ पर पानी का सोर्सेज भी कम रहता है, लेकिन फिर भी पानी की बहुत समस्या है। ये लगातार कई सालों से, वर्षों से ये समस्या लगातार चली आ रही है। क्योंकि गर्मी के सीज़न में, मौसम में तो और भी स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि लोगों को पानी कहीं से भी खरीद के लाना पड़ता है। इधर में अच्छा से स्कूल नहीं है, कॉलेज, वो जो हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, ठीक है, एजुकेशन में बैक है। और हमारा इधर में जो समस्या तो है, वो समस्या से ऊपर फिर और प्रेशर होता है ना, प्रेशर तो होता ही है ना, वो प्रेशर से हम लोग बहुत नाराज है। अभी पहाड़ में हाँ सेफ है, मतलब पढ़ने लिखने के बाद मतलब काफ़ी मतलब तकलीफ, सिलीगुड़ी जाना पड़ता है। मतलब पहाड़ वाले को बहुत दिक्कत है वहाँ जाके, टॉर्चर, मतलब हाँ बोलते कि तुम लोग नेपाली हो, वो तो हम लोग गोरखा ना, तो ये चीज़ में बीच में हुआ भी था। मतलब यहाँ पे हम लोग का अम्बुटिया है जो बंद है अभी। इट्स लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस टी गार्डन्स यहाँ पे, लेकिन वो अभी बंद है बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन द लेबरर्स एंड द मैनेजमेंट। और मिसकम्युनिकेशन हो रहा है आपके वेज को लेके। अभी जितने भी ईयर्स बीत रहे हैं उसमें 270 तक तो आ गया है, 276 तक तो आ गया, बट फिर भी अभी की इकोनॉमी में मतलब 270 इज़ नॉट इनफ। बहुत अच्छा है, सुविधा है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब पढ़ने के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं करने का, एजुकेशन बहुत है लेकिन पढ़ने के बाद कोई ऑप्शन ही नहीं है। कौन है फील्ड में काम करेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है करने का। आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में 4023 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला डीएमके और AIADMK की अगुवाई वाले NDA गठबंधन के बीच है। कई सीटों पर अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी TVK त्रिकोणीय मुकाबले में है। इस चुनाव में 5.73 करोड़ से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आगे आएंगे। मतदान को बढ़ावा देने और 100% मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने राज्य भर में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार थम जाएगा, जिसके बाद सभी तरह के सार्वजनिक रैलियां और राजनीतिक प्रचार प्रतिबंधित होंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कोलाथुर विधानसभा क्षेत्र से DMK उम्मीदवार MK स्टालिन ने चेन्नई के कन्नगी नगर में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने अपने मॉर्निंग वॉक कैंपेन के दौरान लोगों से बातचीत भी की। इस दौरान स्टालिन स्थानीय लोगों से मिले और उन्होंने उनका समर्थन मांगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मोहन यादव आज तमिलनाडु में थे। वे भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रासीपुरम और अविनाशी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। कोयम्बटूर के रासीपुरम विधानसभा क्षेत्र में वो दोपहर बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वो शाम 4:30 बजे अविनाशी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर एल मुरुगन के समर्थन में प्रचार करेंगे और जनसंपर्क करेंगे। यहाँ से चुनाव लड़ रहे डॉक्टर एल मुरुगन का मध्य प्रदेश से एक खास कनेक्शन है। दरअसल डॉक्टर मुरुगन मध्य प्रदेश से फिलहाल राज्यसभा सदस्य हैं। और तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अर्चना पटनायक ने कहा कि निगरानी टीमों ने अब तक राज्य में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी, सोने चांदी की वस्तुएं, उपहार सामग्रियां, शराब और मादक पदार्थ जब्त किए हैं। राज्य में 23 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्होंने एक बयान में कहा कि 20 अप्रैल तक राज्य के विभिन्न स्थानों से कुल करीब 170 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में तैनात निगरानी दल 24 घंटे 7 दिन सक्रिय रूप से निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अधिकारियों ने 650 करोड़ से ज़्यादा रुपए मूल्य की सोने और चांदी की वस्तुएं सहित कीमती धातुओं को भी जब्त किया है। इसी प्रकार 306 करोड़ रुपए के उपहार और मुफ्त वस्तुएं जब्त की गई हैं। साथ ही 82 करोड़ रुपए की मूल्य से ज़्यादा के मादक पदार्थ जब्त किए गए।
इसके अलावा करीब 3 करोड़ रुपए के मूल्य की शराब जब्त की गई। कुल मिलाकर के 1212 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। पटाक ने बताया कि जब्त की गई कुल राशि में से लगभग 495 करोड़ रुपए वैध दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर वापस लौटा दिए गए। तो ये थी चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरें हमारे जनादेश में। पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले को 1 साल पूरे हो रहे हैं। हमले की बरसी से एक दिन पहले भारतीय सेना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर तस्वीर के साथ एक पोस्ट किया है। सेना ने कहा है कि जब मानवता की सीमाएं पार की जाती हैं तो प्रतिक्रिया निर्णायक होती है, न्याय मिलता है, भारत एकजुट है। भारतीय सेना ने कहा कि कुछ सीमाएं कभी पार नहीं करनी चाहिए, भारत भूलता नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते साल 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में घूमने गए सैलानियों पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर दी थी। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। पहलगाम आतंकी हमले से देश भर में आक्रोश फैल गया था। आतंकियों ने लोगों से नाम और धर्म पूछकर महिलाओं और बच्चों तक के सामने उन्हें गोली मारी थी। इस आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के जरिए करारा जवाब दिया था। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर किया था। और पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहलगाम में एक शहीद स्मारक स्थापित किया गया है। यह स्मारक आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 26 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। स्मारक में हमले में जान गंवाने वाले लोगों के नाम अंकित है। इस बीच डल झील के आसपास सेना ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। घाटी में पर्यटकों का आना लगातार जारी है। सेना ने आमजनों के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम करते हुए डॉग स्क्वाड भी तैनात किया। रेलवे 3 महीने में देश भर में 18,262 ग्रीष्मकालीन विशेष फेरे संचालित करेगा। इससे यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि उसने देश भर में बड़ी संख्या में विशेष रेल सेवाओं को मंजूरी देकर के ग्रीष्म ऋतु में यात्रियों के लिए सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक की अवधि के लिए कुल 908 ग्रीष्मकालीन विशेष रेलगाड़ियों को मंजूरी दी गई है, जो बढ़ी हुई यात्रा मांग को पूरा करने के लिए 18,262 फेरे संचालित करेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष द्वारा संसद में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के विरोध में आज उन्होंने जन आक्रोश महिला पदयात्रा में शिरकत की। ये पदयात्रा लखनऊ में सीएम आवास से यूपी विधानसभा तक निकाली गई। यात्रा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत कई लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जन आक्रोश महिला पदयात्रा में शामिल हुए। ये पदयात्रा महिला आरक्षण बिल पास न होने के विरोध में निकाली गई है। यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का जिक्र किया और कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए शौचालय निर्माण, जनधन खाते और उज्ज्वला योजना जैसे कई कदम उठाए। साय ने विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने तक संघर्ष जारी रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जब से वो प्रधानमंत्री बने लगातार नारियों का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर सुकन्या समृद्धि योजना, फिर देश के सर्वोच्च पद पर आज एक महिला राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। इंडी गठबंधन ने और विशेषकर कांग्रेस, सपा, टीएमसी वगैरह
पार्टी ने इसको पास होने नहीं दिया, अभी भी हमारी 70 करोड़ माताएं बहनें माफ नहीं करेंगी। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की माता बहनों से क्षमा भी मांगा है। और आज पूरे देश में 18वां सिविल सेवा दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नई दिल्ली में विज्ञान भवन में होने वाले एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिसमें उन्होंने सिविल सेवकों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। इस साल का विषय रखा गया है विकसित भारत, अंतिम छोर तक नागरिक केंद्रित शासन और विकास। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जगत प्रकाश नड्डा, शिवराज सिंह चौहान और जीतन राम मांझी भी शामिल होंगे। इसके बाद आज दोपहर को उपराष्ट्रपति मेरठ में IIMT यूनिवर्सिटी के तीसरे दीक्षांत समारोह में भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वें सिविल सेवा दिवस के मौके पर सभी सिविल सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने एक्स संदेश में उन्होंने कहा, आई कोट, सभी सिविल सेवकों को सिविल सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी प्रतिबद्धता उत्तरदायी शासन को सशक्त बनाती है और सार्वजनिक संस्थाओं को मजबूत करती है। नवीन, भविष्योन्मुख और जन केंद्रित नीतियों के निर्माण से लेकर उनके प्रभावी क्रियान्वयन तक आपका कार्य लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। जैसे जैसे भारत नई आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ रहा है, आपकी ईमानदारी और संवेदनशीलता खाई को पाटने, समावेशिता को बढ़ावा देने और राज्य तथा नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आप निरंतर सार्वजनिक सेवा के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखें और एक अधिक न्यायसंगत एवं प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में सार्थक योगदान देते रहें। और इसी मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी सिविल सेवकों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, आई कोट, सिविल सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सुशासन और राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने के संकल्प को और मजबूत करने का अवसर है। जमीनी स्तर से लेकर नीति निर्माण तक सिविल सेवकों के प्रयास अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं और भारत की प्रगति में योगदान देते हैं। हमारे सिविल सेवक उत्कृष्टता, करुणा और नवाचार के साथ अपनी सेवाएं जारी रखें और कर्तव्य के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। गृहमंत्री अमित शाह ने भी सिविल सेवा दिवस की बधाइयां दी हैं। उन्होंने एक्स संदेश में कहा, आई कोट, सिविल सेवा दिवस के अवसर पर हमारे सभी सिविल सेवकों को हार्दिक शुभकामनाएं। नीतियों के क्रियान्वयन, सुशासन को मजबूत बनाने और ईमानदारी के साथ नागरिकों की सेवा करने में उनका समर्पण राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अवसर उनके राष्ट्र के प्रति योगदान देने के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करे, यही कामना है। और सिविल सर्विसेज डेज पर आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं, आइए देखते हैं। भारत की शासन और प्रशासन प्रणाली की रीढ़ माने जाने वाले सिविल सेवकों द्वारा जनसेवा और राष्ट्र के उत्थान में किए गए बेहतरीन कार्यों को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सिविल सेवकों को नागरिकों के हित में स्वयं को समर्पित करने, सार्वजनिक सेवा और कार्य में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। इस साल का थीम है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस और लास्ट माइल डिलीवरी। जो हम बोलते हैं ना, नागरिक केंद्रित शासन होना चाहिए और अंत्योदय पोजीशन में जो भी हैं उनके लिए जो सरकारी सुविधाएं और सरकार का सेवा जो भी मिलना चाहिए वो मिलने के लिए तैयारी होना और इसका एक रीप्लेज ले रहे हैं सब पूरे देश में। सब जो भी अधिकारी लोग हैं उनके लिए एक अवसर है कि उस तरह का सोच हर दिन लेने के लिए क्या क्या कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। दरअसल सिविल सेवा दिवस भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 21 अप्रैल 1947 को दिए गए ऐतिहासिक भाषण की याद में मनाया जाता है, जिसमें उन्होंने सिविल सेवकों के पहले बैच को संबोधित करते हुए उन्हें भारत का इस्पात ढांचा बताया था। सरदार पटेल ने इस बात पर जोर दिया था कि नव स्वतंत्र राष्ट्र की एकता और प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने के लिए सिविल सेवकों की सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और समर्पण आवश्यक है।
सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाए जाने का निश्चय किया और पहला सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल 2006 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसने ऐसी परंपरा की स्थापना की जो कि अनवरत जारी है। भारतीय प्रशासनिक कैलेंडर में सिविल सेवा दिवस कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह सिविल सेवकों के योगदान को मान्यता देता है और लोक प्रशासन में उनके उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहित करता है। इसके साथ ही यह दिवस सिविल सेवकों के लिए अपनी भूमिकाओं पर विचार करने और राष्ट्र की सेवा के प्रति स्वयं को और ज्यादा समर्पित करने के लिए भी प्रेरित करता है। सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं है, आने वाले एक साल में क्या क्या कर सकते हैं, इस दिन क्यों इतना स्पेशल है। इस दिन में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्पीच था उसके बारे में भी सोचने का समय आ गया है। अगले एक साल में देश के लिए क्या कर पाएंगे इसके बारे में सोचने का एक मौका है। सरकार का सोच है कि सरकार में डिसाइलोराइजेशन होना चाहिए, होल ऑफ गवर्नमेंट का अप्रोच आना चाहिए। ये सब विचार के बारे में सोचना, सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन बहुत स्पेशल है। प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस के मौके पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए केंद्र, राज्य सरकारों के संगठन, जिलों और सिविल सेवकों को प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। आज तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्यों की जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत को उत्कृष्ट नागरिक केंद्रित शासन प्रदान करने में सिविल सेवकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में यह दिन सिविल सेवकों को जन सेवा और उत्कृष्टता के कार्यों को याद करने और आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गर्मी की फसल यानी मूंग की फसल में रोग का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिक किसानों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार आजकल मूंग की फसल में उकठा रोग के लक्षण पाए जा रहे हैं। इस बीमारी में पौधे मुरझाने लगते हैं और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। धीरे धीरे पूरा पौधा ही सूख जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये एक कवक जनित रोग है जो कि मिट्टी में मौजूद फ्यूजेरियम की वजह से फैलता है। इस वजह से पौधे पोषक तत्वों को सही तरीके से नहीं ले पाते, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। रोग नियंत्रण के लिए किसानों को सलाह दी गई है कि टेब्यूकोनाजोल के साथ सल्फर 400 ग्राम प्रति एकड़ या फिर पैराक्लोस्ट्रोबिन 20 WG 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव किया जाए। छिड़काव सुबह या फिर शाम के समय करना बेहतर रहेगा। समय पर पहचान और सही प्रबंधन से किसान मूंग की फसल को इस रोग से बचा करके बेहतर उत्पादन हासिल कर सकते हैं। और केंद्र सरकार ने अतिरिक्त 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात को मंजूरी दे दी है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अनुसार यह फैसला उत्पादन, भंडारण और कीमतों की समीक्षा के बाद लिया गया। 2025-26 में गेहूं उत्पादन 1202 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है। इससे पहले जनवरी में 5 LMT और फरवरी में 30 LMT निर्यात की अनुमति दी जा चुकी थी। इसके साथ ही कुल मंजूरी 50 LMT तक पहुंच चुकी है। रबी सीजन में बुआई क्षेत्र बढ़कर के 334 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा हो गया। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे, बाजार में तरलता बढ़ेगी और भंडारण का बेहतर प्रबंधन होगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने उपग्रह इमेजिंग प्रणाली प्रज्ञा को केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप दिया है। रक्षा मंत्रालय के सचिव DDRND ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रज्ञा को केंद्रीय गृह सचिव को सौंप दिया। DRDO की केयर प्रयोगशाला द्वारा विकसित ये AI सक्षम प्रणाली गृह मंत्रालय को वास्तविक समय में निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। ये प्रणाली रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो जाता तब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से अपनी नाकेबंदी नहीं हटाएगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब इस बात को लेकर के अनिश्चितता भी बनी हुई है कि युद्ध खत्म करने को लेकर के दोनों देशों के बीच नई बातचीत होगी या फिर नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि एक हफ्ता पहले शुरू हुआ ये नाकेबंदी का कार्यक्रम ईरान को पूरी तरह से तबाह कर रहा है और अमेरिका इस संघर्ष में काफ़ी आगे जा चुका है।
गौरतलब है कि अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी संघर्ष विराम की अवधि बुधवार को खत्म होने वाली है, लेकिन इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि पाकिस्तान में शांति वार्ता का दूसरा दौर आगे बढ़ेगा या फिर नहीं। बैठक की संभावना को देखते हुए पाकिस्तान की राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस अभी तक वाशिंगटन से रवाना नहीं हुए हैं, जबकि ईरान का कहना है कि उसने अभी तक ये तय ही नहीं किया है कि वो इसमें शामिल होगा या नहीं। JD वेंस दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेटकॉम के अनुसार जब से नाकेबंदी शुरू हुई है, अमेरिकी सेना ने 27 जहाज़ों को वापस लौटने या फिर किसी ईरानी बंदरगाह पर जाने का निर्देश दिया है। अमेरिका ने इस संघर्ष के दौरान पहली बार ईरान का झंडा लगा एक मालवाहक जहाज रोका और जब्त भी कर लिया। इस जहाज़ ने रविवार को नाकेबंदी को पार करने की कोशिश की थी। सेटकॉम द्वारा साझा किए गए वीडियो में कथित तौर पर यह दिखाया गया कि जहाज़ पर सैनिकों के उतरने से पहले उसे चेतावनी दी गई थी। उधर ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गालिबफ ने कहा कि अमेरिका युद्ध में ईरान से आत्मसमर्पण चाहता है, लेकिन तेहरान इसके विपरीत मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर रहा है। गालिबफ ने आज तड़के एक्स पर एक पोस्ट में कहा, हम धमकियों के साए में बातचीत स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान से आत्मसमर्पण चाहता है, लेकिन तेहरान युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस, उनके दामाद जेरेड कुशनर और दूत स्टीव विटकॉफ सोमवार को इस्लामाबाद जाएंगे, जहां पाकिस्तानी अधिकारी वार्ता की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे दौर की वार्ता के लिए कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। इसके बाद वेंस का काफिला व्हाइट हाउस में देखा गया। ट्रंप ने कहा कि बुधवार को युद्ध विराम समाप्त हो रहा है और वो इसे बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं है। लगभग 2 महीने से जारी युद्ध से वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला देने वाले ऊर्जा संकट और गहराने की आशंका जताई जा रही है। इस बीच इजराइल और लेबनान ने कहा कि वे बृहस्पतिवार को वाशिंगटन में अगले दौर की वार्ता करेंगे, जो दशकों में उनकी पहली सीधी राजनयिक वार्ता होगी। और ईरान ने 1 दशक से अधिक समय बाद सीरिया के साथ राबिया बॉर्डर क्रॉसिंग फिर से खोल दिया है, ताकि ईंधन तेल के निर्यात को तेज किया जा सके और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिले। गल्फ क्षेत्र में शिपिंग प्रभावित होने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बाधाओं की वजह से इराक अब वैकल्पिक रास्तों की तलाश में है। इसी के तहत सीरिया के रास्ते ट्रक्स के जरिए ईंधन भेजने की योजना बनाई गई है। अधिकारियों के अनुसार इस कदम से ईंधन आपूर्ति का दबाव कम होगा और रुका हुआ व्यापार भी शुरू हो पाएगा। ईरान पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में कमी आने से उसकी अर्थव्यवस्था भी काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। इसलिए अब विकल्प की तलाश की जा रही है कि कैसे वहाँ से तेल का निर्यात किया जा सके। कुछ और खबरें देखते हैं। एप्पल के CEO टिम कुक ने अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी है। उसके बाद वो कंपनी के हार्डवेयर इंजीनियरिंग प्रमुख जॉन टर्नस ये जिम्मेदारी निभाएंगे। स्टीव जॉब्स के बाद ये जिम्मेदारी संभालने वाले टिम कुक का CEO के रूप में लगभग 15 साल का कार्यकाल सितंबर में समाप्त हो जाएगा। उनके कार्यकाल में आईफोन की बढ़ती मांग की वजह से कंपनी का बाजार मूल्य $3,600 अरब से भी अधिक पहुंच गया। कुक 1 सितंबर को CEO की जिम्मेदारियां जॉन टर्नस को सौंप देंगे, लेकिन वो कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो स्थित इस कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन के तौर पर जुड़े रहेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने नेपाल के विश्वविद्यालयों और स्वास्थ्य संस्थानों को राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र और कर्मचारी संगठनों को भंग करने का निर्देश दिया है। ये निर्णय सिंहदरबार में कुलपतियों और संस्थान प्रमुखों के साथ बैठक में किया गया। प्रधानमंत्री सचिवालय के अनुसार जेनजी आंदोलन के बाद छात्र राजनीति अप्रासंगिक हो गई है और ऐसे संगठनों को समाप्त करने की प्रक्रिया जारी है। शाह ने कहा कि इस फैसले को अमल में लाने के लिए कोई भी कानून बाधा नहीं बन सकता। IPL में आज सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के बीच मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी नेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमें 6-6 अंकों के साथ बराबरी पर हैं। हालांकि बेहतर रन रेट की वजह से हैदराबाद चौथे स्थान पर है। दिल्ली चौथी जीत की तलाश में है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपने घर में जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरेगी। अब तक दोनों टीमों के बीच 26 मैच खेले गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 और दिल्ली कैपिटल्स ने 11 मैच जीते हैं। एक मैच टाई रहा था, इसे दिल्ली ने जीता था, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा। भारत के जूनियर निशानेबाज आज मिस्र के काहिरा में ISSF जूनियर निशानेबाजी वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। आज 10 मीटर एयर राइफल महिला और 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष स्पर्धाओं में 2 पदकों का फैसला होगा।
महिला एयर राइफल स्पर्धा में एशियाई जूनियर रिकॉर्ड धारक शांभवी क्षीरसागर, अनुष्का ठोकुर, मान्यता सिंह, अनीशा शर्मा, अन्वी राठौर और पनाह भोगरा के साथ भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एयर पिस्टल में पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन शिव नरवाल 3 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वापसी कर रहे हैं। 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में समीर गुलिया शामिल होंगे, जबकि स्कीट स्पर्धा में 5 पुरुष और 4 महिलाएं इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगी। पहले दिन महिला 10 मीटर एयर राइफल और पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल में पदकों का फैसला होना है। इस वर्ल्ड कप में कुल 25 देशों के 284 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं और 71 सदस्यों वाला भारत का दल सबसे बड़ा है। हॉकी इंडिया ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय सत्र की तैयारियों के मद्देनजर सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कोचिंग कैंप के लिए 36 सदस्यीय संभावित खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है। ये कैंप 20 अप्रैल से 9 मई तक बेंगलुरु के भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। गोलकीपिंग विभाग में अनुभवी कृष्ण बहादुर पाठक, सूरज करकेरा और पवन के साथ युवा प्रतिभाएं मोहित होननहल्ली, शशि कुमार और प्रिंसदीप सिंह को मौका दिया गया है। डिफेंडर में कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अमित रोहिदास जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ जर्मनप्रीत सिंह, युवराज सिंह, संजय और सुमित शामिल हैं। इनके अलावा पुवन्ना चंदूरा बॉबी, यशदीप सिवाच, नीलम संजीव जेस और अमनदीप लाकड़ा जैसे युवा खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा हैं। मिडफील्ड में मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह और विवेक सागर प्रसाद जैसे प्रमुख खिलाड़ी टीम की कमान संभालेंगे। इसके साथ राजेंद्र सिंह, मनमीत सिंह, मोइरांग थेम, रविचंद सिंह, विष्णुकांत सिंह, राजकुमार पाल, नीलकांत शर्मा और रोशन कुजूर को भी शामिल किया गया है। फॉरवर्ड लाइंस में देखें मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह, अभिषेक और सुखजीत सिंह जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के साथ शिलानंद लाकड़ा, अराइजित सिंह हुंडाल, अंगद वीर सिंह, उत्तम सिंह, सेल्वम कार्ति, आदित्य अर्जुन लालगे और मनिंदर सिंह को मौका दिया गया है। तो समाचार के इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।